चलो शैल वी स्टार्ट. हमने नोट्स के लिए जगह छोड़ा था. हाँ, तो आ जाओ उधर. चलो विल स्टार्ट विद द न्यू पार्ट. कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है. वी स्टार्ट विद द न्यू पार्ट. फॉर दैट गिव द हेडिंग एज वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन. हाँ हाँ, सब करेंगे. ओ महिला मंडली, चलो लिखो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन. ए मिठी भाई, क्या हो गया? एनी प्रॉब्लम? चलो नाउ अंडरस्टैंड दिस वन. व्हाई वी आर डूइंग दिस? बिकॉज दिस इज अ फिक्स क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स. मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तुमको पोर्शन में तो ये पार्ट कराएगा ही कराएगा. और ये पार्ट में डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स इन्वॉल्व होता है. That's why we are doing this part first. We'll finish sums based on this part first. Then we discuss what was the homework and whatever doubts it is. Clear? Value of expression find करना है when x का value is given in complex number. So we have a prescribed steps. Let us do that and then we start with the sums. लिखो, in order to find the value of an expression, in order to find the value of an expression when value of x is given, value of x is given in the form of complex number, then we observe the following steps. We observe the following steps. लिखो स्टेप नंबर 1, write the value of x, write the value of x given in the question. फिर step number 2, collect all real terms on one side. Collect all real terms on one side. Collect all real terms on one side and imaginary terms on other side. And imaginary terms on other side. Full stop. Next, step number 3. Square on both sides. Square on both sides, comma, simplify, comma, shift all the terms on left side. Shift all the terms on left side and hence find the value of a quadratic expression. Hence find the value of a quadratic expression is equal to 0.
quadratic expression is equal to 0 and denote it as equation number 1 and denote it as equation number 1. Step number 4, divide the polynomial whose value is to be found out with the quadratic expression of equation 1. With the quadratic expression of equation 1. I repeat, divide the polynomial whose value is to be found out with the quadratic expression of equation 1. Clear? Next line में लिखो, that is dividend is your polynomial, divisor is your quadratic expression. Divisor is your quadratic expression. Clear है? Step number 5, perform actual division of polynomials. Perform actual division of polynomials and hence find actual division of polynomials and hence find quotient and remainder. Quotient and remainder. Step number 6. Use the relation, कॉमा करके लिखो नेक्स्ट लाइन में, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू quotient plus remainder. Clear? And hence find the value of the expression. And hence find the value of the expression. नीचे नोट करके लिखो, generally, comma, the final answer of such questions, generally, comma, the final answer of such questions is always remainder, is always remainder. Leak. Generally the final answer of such questions is always remainder. चलो, now this is a 4 marker question. इसमें mistake division करने में जाता है because हमारा habit नहीं है उसमें हम powerful होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है. If you are powerful it is good, doesn't make division of polynomial. तो it is very easy, लेकिन plus minus का error होता है उसमें भी. Is that clear? चलो, we'll do one sum. I want you to observe the steps and then you can do the calculations. Clear? चल, page number 31 में
That is your classwork number 1 only. Question number 9. Classwork 1, page 31, question number 9, उसका फर्स्ट सम. चेक करो क्या दिया है. What is given? Read the question properly and no talking up. समझ लो पहले कैसे करना है, बिकॉज बाकी के क्वेश्चन तुम लोग खुद कर रहा है. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 if x is 2 plus 3i. मतलब they are asking us x cube minus x square plus x plus 46 if x का वैल्यू is 2 plus 3i. क्लियर है? नाउ जनरल टेंडेंसी क्या है? व्हाट इज अवर जनरल टेंडेंसी टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस के x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और वैल्यू फाइंड करो. तो प्रॉब्लम ये है कि यहां पे जब ये एक्स क्यूब दिया है तो पूरा ब्रैकेट का क्यूब करेगा. हाँ तो सर क्यूब का फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन ये अगर डिग्री 5 में आया, डिग्री 4 में आया, तभी अटकता है. तो वी कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट. इसलिए हमने एक स्टेप डिजाइन किया है कि हमको फाइनल आंसर डायरेक्टली मिलेगा. इज दैट क्लियर? तो दिस इज योर एक्सप्रेशन जिसका वैल्यू तुमको फाइंड करना है, and your x का value is given in terms of complex number. That is what we have written. We are supposed to find the value of x cube minus x square plus x plus 46. That is called value of expression. When value of x is given in form of complex number. समझ में आया ये? Okay, now we'll follow the steps. You are not writing, first observe, फिर तुम complete करना. चल काशवी, read the steps what we have written. ये वाला. हाँ चल काशवी पढ़. ओके, so first we start with x, which is x is equal to 2 plus 3i. ये हमने वैल्यू लिखा. चलो फिर. हाँ मतलब अभी मैं किसको शिफ्ट करूं? रियल टर्म एक साइड पे होना चाहिए, इमेजिनरी टर्म्स एक साइड पे होना चाहिए. तो इसमें इमेजिनरी टर्म कौन सा है? 3i. तो मुझे किसको शिफ्ट करना है? 2 को. तो ये 2 शिफ्ट होएगा. तो दिस विल बिकम x माइनस 2 इज इक्वल टू 3i. इज दैट क्लियर? रियल टर्म एक साइड, इमेजिनरी टर्म एक साइड. समझ में आया? ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? करेक्ट. नाउ व्हाई वी आर शिफ्टिंग रियल टर्म्स ऑन वन साइड? क्योंकि हमको आई नहीं चाहिए. अच्छा, आई नहीं चाहिए तो आई का स्क्वायर करेगा तो क्या हो जाएगा? इसलिए हम क्या कर रहा है? दोनों बाजू स्क्वायरिंग कर रहा है. इज दैट क्लियर? सो दिस इज स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. चलो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया तो ये हो जाएगा x माइनस 2 द होल स्क्वायर. दिस इज 3i द होल स्क्वायर. सो ये a माइनस बी द होल स्क्वायर में एक्सपांड होएगा. दिस बिकम्स x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू, चलो 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर i स्क्वायर. तो नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 9 इंटू दिस इज i स्क्वायर इज माइनस 1. चलो तो ये माइनस 9 हो जाएगा. अभी इसको मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूं तो दिस बिकम्स x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 9 इज 0. और हमको हमेशा हर सम में ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगा जिसका वैल्यू 0 होएगा. एंड दिस वी डिनोट एज इक्वेशन 1. यही हमने स्टेप्स में लिखा है. इज दैट क्लियर? हर सम में यहां तक फिक्स है. लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, क्वाड्रेटिक पैटर्न आएगा, इज इक्वल टू 0. क्लियर है यहां तक? एनी डाउट्स? हाँ वेनु? ओके, क्लियर एवरीबडी? अच्छा, नाउ व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप दैट वी हैव रिटन? करेक्ट. अभी हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है? एक्सप्रेशन जो दिया है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46.
इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46। इस जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसको डिवाइड करो। किससे डिवाइड करेगा? ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना उससे, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। अभी ये डिवीजन आता है तुमको? बस इधर ही गड़बड़ होता है। आता है तो इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन जिसको नहीं आता है, सुनो अभी ध्यान से सुनो, मैं इसलिए बोला लिखना नहीं, नहीं आता इट्स ओके, हम टेक्निक से करेंगे। अंडरस्टैंड? कभी भी कोई भी डिवाइजर होता है, सपोज ये मेरा डिवाइजर है, ये कितना टर्म्स में है? 3। तो मैं क्वोशंट कुछ भी लिखूं, 1 भी लिखूं समझो, तो डिवाइजर इनटू क्वोशंट करके फिर इधर आंसर आता है। तो मैं क्वोशंट कुछ भी लिखूं तो कितना टर्म में आंसर आने वाला है? 3 टर्म में आने वाला है। करेक्ट? दैट इज वन थिंग, इज दैट गिव्स यू अ हिंट कि मुझे थर्ड टर्म के ऊपर लिखना है। दैट इज फर्स्ट हिंट। सेकेंडली, हम लोग टारगेट किसको करेगा? हमको ये चाहिए, व्हाट इज दिस? साइन के साथ बोलने का, इट इज प्लस एक्स क्यूब, बरोबर है? तो इधर का फर्स्ट टर्म क्या है डिवाइजर का? तो यू टेल मी, एक्स स्क्वायर से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब आएगा? करेक्ट। तो ये जो एक्स है वो मैं इधर लिखेगा, थर्ड टर्म के ऊपर। हाँ बोल। वही समझा रहा हूं, सुन। अभी ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना आएगा? तो ये आएगा एक्स क्यूब। करेक्ट? इज दिस प्लस या माइनस? एग्जैक्टली, ये प्लस एक्स क्यूब आएगा। अभी यहां पे सेकेंड टर्म क्या है? -4x इंटू एक्स करेगा तो क्या आएगा? -4x स्क्वायर। अभी ये थर्ड टर्म 13 है, प्लस 13 इंटू एक्स इज, मतलब मैं ये बोल रहा था मेनू कि वेन एवर यू राइट द न्यूमर क्वोशंट, you will always multiply it with divisor, you get answer in 3 terms because divisor is in 3 terms. तो अगर 3 टर्म में आंसर मिल रहा है तो मेरा क्वोशंट, पब्लिक का हैबिट क्या है मालूम है? क्वोशंट इधर लिखेगा, विच इज रॉन्ग, फिर मिस्टेक होता है। 3 टर्म में आंसर मिला ना इधर। अरे इधर डिवाइजर में कितना टर्म है? सिंपल है, पॉइंट वो भी नहीं है, पॉइंट ये है कि क्वोशंट कहां लिखना है। पब्लिक क्या करता है, गाई गाई में क्वोशंट इधर लिखता है, बहुत फर्क पड़ता है। तो लिख के देख फिर समझेगा। तो बी, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्यूब स्क्वायर रेस टू 1 और कांस्टेंट, तो प्रॉब्लम इतना नहीं आता है। जब ये क्यूब रहेगा और फिर सीधा एक्स रहेगा ना, तभी बहुत प्रॉब्लम होता है। समझ रहा है? सो डोंट डू इट। 3 टर्म है, तीसरे टर्म के ऊपर क्वेश्चन लिखो, क्योंकि आंसर 3 टर्म में आने वाला है, सिंपल है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कैन आई से वी चेंज द साइंस? ये साइन चेंज हुआ तो नाउ एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, हाँ है ना? ओके, अभी ये साइन कितना होएगा? प्लस। तो चलो बोलो क्या आएगा? नहीं, प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस विल बी प्लस, प्लीज राइट इट विथ साइन। ये प्लस का क्या हो जाएगा? तो ये आएगा प्लस एक्स माइनस 13x, हाउ मच? -12x। अभी ये टर्म बचा वो नीचे आएगा, तो प्लस 46। समझ में आया? यस और नो? ओके, नाउ अगेन वी टारगेट दिस फर्स्ट टर्म। हमेशा जो भी एक्सप्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म टारगेट रहेगा। यहां पे फर्स्ट टर्म है प्लस 3x स्क्वायर, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे प्लस 3x स्क्वायर मिलेगा? +3, तो मैं वो +3 इधर लिखेगा। अभी आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? ओके, तो आंसर मुझे मिलेगा +3x स्क्वायर। चलो अभी सेकेंड टर्म है -4x इंटू +3, -12x, +13 इंटू +3, +39। अगेन कैन आई से मैं साइंस चेंज करेगा, माइनस प्लस माइनस, तो चेक करो
ये 3x² -3x² कैंसिल हो गया, ये -12x प्लस 12x कैंसिल हो गया, 46 -39 बचता है कितना, +7. दिस इज योर रिमाइंडर. इज दैट क्लियर? अभी आगे डिवाइड ही नहीं होएगा. करेक्ट. अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम यहां पे ऐसा लिखता है ना, ऐसा, तो समझ में नहीं आता है कि आगे करना है कि नहीं करना है. सेकेंडली ये 46 नीचे जाएगा, हमको ये समझता ही नहीं है कि डिवाइड कैसे करना है. सो बी क्लियर. जितना टर्म्स है, जितने टर्म्स में आंसर आने वाला है, वो थर्ड टर्म के ऊपर से चालू करो. इफ देयर आर 3 टर्म्स, तुम कभी मिस्टेक नहीं करेगा. दूसरा, जिसको ये नहीं जमता है ना डिवीजन, उसका सबसे ज्यादा गड़बड़ किधर होता है मालूम है? वो लोग है ना, ये x लिखेगा, फिर ये +x³ भी लिखेगा, बाकी का टर्म को x के साथ मल्टीप्लाई करने को भूल जाएगा. इसलिए मैं ऐसा सिखा रहा हूं कि तुम्हारा डिवाइजर 3 टर्म में है, क्वोशंट जो भी लिखो, जो भी तुम लिख रहा है, तीसरे टर्म के ऊपर से लिखो, क्योंकि तुम डिवाइजर इंटू क्वोशंट करेगा तो 3 टर्म आंसर में आएगा ही आएगा. सो दैट यू डोंट फॉरगेट मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिमेनिंग 2 टर्म्स. समझ में आया? यस और नो? तो ये डिवीजन हो गया, हाँ है ना? ओके, आगे क्या लिखा है? चलो डिवीजन तो हो गया. परफेक्ट. अभी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. चलो, व्हाट वाज आवर डिविडेंड? डिविडेंड अपना पॉलिनोमियल था जिसका वैल्यू फाइंड करना है, x³ - x² प्लस x प्लस 46 इज इक्वल टू डिवाइजर, मतलब अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था विच वाज x² - 4x प्लस 13 इनटू क्वोशंट अपने को क्या मिला, x प्लस 3 मिला, प्लस रिमाइंडर इज 7. तो +7 या 7 लिखो, सेम है, लेकिन ब्रैकेट में लिखने का. अगर -7 होता तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. अभी इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में देखो क्या मिला था अपने को. ये क्वाड्रेटिक का वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या है? मतलब डिवाइजर का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा. अगर ये 0 है तो क्वोशंट मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, +7. मतलब दिस विल बी 0 + 7. मतलब हमेशा आंसर कौन सा फॉर्म में आएगा? साथ नहीं, रिमाइंडर. रिमाइंडर जो बचेगा वही तुम्हारा जनरली फाइनल आंसर होएगा. क्लियर है? इसलिए देखो फाइनल आंसर में नोट में क्या लिखा है, रीड द नोट. मतलब जो रिमाइंडर है वही फाइनल आंसर है. तो डिवीजन किया, तुमको रिमाइंडर मिला ना, समझ जाएगा आंसर ये है, लेकिन ये फॉर्मेलिटी स्टेप्स करना पड़ता है. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन व्हेन x का वैल्यू इज गिवन इन कॉम्प्लेक्स नंबर. इज दैट क्लियर? समझ में आया? तुमको सिर्फ डिवीजन संभालना है. डिवीजन अगर तुमको आता है तो प्रॉब्लम नहीं होएगा. किधर डिवाइजर 0? डिवाइजर क्या है? x² - 4x प्लस 13. इक्वेशन 1 में उसका वैल्यू क्या लिखा है अपन ने? समझ रहा है? और वो हर सम में 0 ही रहेगा. क्लियर? करो चलो. तो इधर 0 डाल रहा है तो रीजन में डालो फ्रॉम इक्वेशन 1. चलो सॉल्व इट. लेके आओ इक्वेशन 1 तक. पहले हुआ है सबका इक्वेशन 1 तक? हाँ, पहले इक्वेशन 1 तक लेके आओ. वीनू समझाना डिवीजन कैसे करने का. यू टू बी वेरी केयरफुल. इधर सिर्फ प्लस माइनस में मिस्टेक होता है डिवीजन में. या फिर डिवाइजर में 3 टर्म है, क्वेश्चन में लेके अपन फर्स्ट टर्म टारगेट करते हैं, वो लिख देते हैं, बाकी का मल्टीप्लाई करने को भूल जाते हैं. वो बहुत कॉमन एरर है, सबका होता है ऐसा. ये महिला मंडली कितना गॉसिप करता है. एनी प्रॉब्लम? नहीं समझा? क्या बोल रहे हैं? हाँ, वो फेयर सॉल्यूशन है. वो अभी डिपेंड करता है. देख,
मैं स्टेप बाय स्टेप किया है, किसी का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मतलब ये क्यूब में जाना वो सब टाइम पास है, उससे चाहिए फटाफट हो जाता है। मार्क तो 4 ही मिलने वाला है। हुआ इक्वेशन 1 तक। वो जनरली इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी रिमाइंडर में एक्स बचता है, तो एक्स का वैल्यू डाल के कॉम्प्लेक्स नंबर में आंसर आएगा। जरूरी नहीं है ना रिमाइंडर खाली कांस्टेंट बचेगा, कभी कभी एक्स बचा तो क्या करें, इसलिए जनरली लिखा है। 4 मार्क का क्वेश्चन है यार, करो ना यार, एक ही सम करने का एग्जाम में, इधर 4-5 करेगा प्रैक्टिस करने के लिए। चलो डिवीजन करो अभी बरोबर से। एनीबडी नॉट अंडरस्टूड डिवीजन स्टिल? क्या बोल रहा है? स्क्वायर करके मतलब तेरा सिस्टम क्या है, व्हाट इज द स्टेप? पहले रियल टर्म एक साइड पे होएगा, फिर इमेजिनरी टर्म एक साइड पे होएगा, तो ही तू स्क्वायर करेगा। जब तक नहीं होएगा तब तक शिफ्टिंग करते रहने का। हुआ डन? वही तो सेम समझना है ना तुझे। ए तुझे ये +3x² चाहिए, तो x² से क्या मल्टीप्लाई करेगा तू? +3, इसलिए साइन के साथ लिखने का सब। अब क्या हो गया धर्मी, क्या हो गया, नहीं समझा तो क्यों बड़बड़ कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो लेट्स स्टार्ट, कैन वी स्टार्ट? चल कर, फिनिश कर फटाफट। डिवीजन हुआ? बोल। नहीं यार, रैशनलाइज करेगा तो आएगा, लेकिन कितना लंबा हो जाएगा? अपना सिस्टम क्या है, पहले रियल टर्म एक साइड पे लो, इमेजिनरी एक साइड पे लो, तो डिनोमिनेटर को शिफ्ट करना वो साइड। ए हुआ ये सबका फर्स्ट सम। चलो वी स्टार्ट विद राइटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स इज 25/3 -4i। अभी हमको इसको इमेजिनरी टर्म एक साइड पे और रियल टर्म एक साइड पे करना है, तो पहले ये पूरा ब्रैकेट इधर शिफ्ट करो। तो x इंटू 3 - 4i इज इक्वल टू 25। ब्रैकेट्स ओपन करो, 3x माइनस 4xi इज इक्वल टू 25। अभी i वाला टर्म राइट साइड पे डालो और 25 को लेफ्ट साइड पे डालो, हो गया इमेजिनरी टर्म एक साइड पे। ऐसा थोड़ी बोला है कि x के साथ i नहीं आएगा, ऐसा बोला है क्या? तो 3x माइनस 25 इज इक्वल टू 4xi। हो गया रियल टर्म एक साइड, इमेजिनरी टर्म एक साइड। अभी करो स्क्वायरिंग, आई निकालने का है अपने को, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो दिस विल गिव यू 3x माइनस 25 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xi द होल स्क्वायर। करो a माइनस बी द होल स्क्वायर में एक्सपांड करो, तो 9x² माइनस 150x प्लस 4x का स्क्वायर आएगा 16x², i का स्क्वायर आएगा i²। चलो सॉल्व करो।
9x² minus 150x plus 625. 16x² into minus 1. Reason डालो. I square is minus 1. तो 9x² minus 150x plus 625 is equal to ये होएगा minus 16x². तो माइनस 16x² को राइट साइड पे डालो, प्लस 16x² माइनस 150x प्लस 625 इज इक्वल टू 0. हाँ, 25x² माइनस 150x प्लस 625 0. सब कुछ 25 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आएगा x² माइनस 6x प्लस 25 इज 0 एंड दिस इज योर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसको तुम इक्वेशन 1 देगा. हाँ, लेकिन लंबा होता है ना वो. डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 25. हो गया, इक्वेशन 1 आया. भी करो डिवीजन. अरे छाप मत कर भाई. चल फिनिश कर. हाँ, अरे क्यों कर रहा है अपन ऐसा. इमेजिनरी टर्म एक साइड पे चाहिए. आई वाला टर्म एक साइड होना चाहिए, बाकी आई के बिना वाला टर्म एक साइड होना चाहिए, तो ही आई निकलेगा, नहीं तो आई निकलेगा नहीं. हुआ, आंसर आया. कितना मिला. Those who have finished will do 16 and then 18. चलो हुआ. इधर आ जाओ. चलो, दोज आर नॉट कंफर्टेबल विद डिवीजन वापस चेक करो. डिवाइजर में कितने टर्म्स है. 3. तो डिवाइजर का जो फर्स्ट टर्म है वो, और यहाँ डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है वो लेके आना है. तो x² से क्या मल्टीप्लाई करेगा. तो 2x मल्टीप्लाई होएगा, विच विल यू राइट इन अबव थर्ड टर्म. तो तुमको आंसर मिलेगा प्लस 2x³ फिर माइनस 6x इंटू 2x इज माइनस 12x² प्लस 25 इंटू 2 प्लस 50x. साइंस चेंज करो, तो ये होएगा 2x³ माइनस 2x³ कैंसल. माइनस 11x² प्लस 12x² गिव्स यू प्लस x². 44 माइनस 50 इज माइनस 6x और ये प्लस 27 होएगा. चलो अभी x² से क्या मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस x² आएगा, दैट इज प्लस 1. तो x² इंटू प्लस 1 इज प्लस x². माइनस 6x प्लस 25 माइनस प्लस माइनस, तो ये दो कैंसल, बचेगा प्लस 2. अभी कर दो फॉर्मेलिटी स्टेप्स. यही गड़बड़ होता है, इसलिए ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करने का. 18. क्यों, तू रुक रहा था ना मेरे लिए. तो बाकी लोग को भी करने दे. ए डिवीजन जम रहा है सबको. एनी प्रॉब्लम डिवीजन में. आया सेकंड का आंसर 2. 16 करो. पटेल मिल रहा है ना. वेर इज जेनी. पता है, वही पूछ रहा हूं क्या है. 16 और 18 फिर.
सेम पैटर्न है, करो। हुआ? सेकेंड हुआ ना सबका? चलो, नाउ वी स्टार्ट विथ 16। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और x का वैल्यू है 1 + √3i। करेक्ट? चलो शुरू करो। x इज 1 + √3i। अभी हमको i वाला टर्म एक साइड पे रखना है, तो इधर से 1 शिफ्ट करो। x - 1 इज √3i। फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करो, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, x - 1 the whole square is equal to √3i the whole square. x square minus 2x plus 1 is equal to, what is √3 का square? 3 into I square. X square minus 2x plus 1 is 3 into -1 gives you I square is -1. X square minus 2x plus 1 is -3, तो -3 को शिफ्ट करो, x square minus 2x plus 4 is 0, इक्वेशन 1। मिला ये सबको? करो डिवीजन। x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। सबसे पहले x क्यूब लाना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो दिस विल बी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x, तो ये माइनस प्लस माइनस, so this will be plus 1 gives you plus x square minus 2x plus 4. चलो, रिमाइंडर 0 आ रहा है 16 में, कर दो फॉर्मेलिटी स्टेप्स। हो रहा है? 18 हुआ, 16 हुआ, 18 करो। फाइनल आंसर, लेकिन स्टेप्स लिखिएगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू, सब लिखने का। हुआ? 16 हुआ, 18 हुआ, was the answer? Good. You are doing पेज 37 पे क्वेश्चन 5। हाँ, पेज 37 क्वेश्चन 5। चलो, दिस इज 5 + 2 इंटू √(-4). तो दिस इज 5 + 2 इंटू √(-4) is written as 4 into -1. 2 into √4 is 2 into √-1, 4 into I हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा x + 5 इज इक्वल टू 4i। रीजन लिखो, √-1 इज i।
क्या? √-1? अरे √-1, देख तो सही, रूट के अंदर नेगेटिव है, तो आप लोग स्प्लिट करके लिखते हैं इसको। कर दो अभी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। चल लिख फटाफट, फिनिश कर। आई नहीं दिया रहेगा मतलब रूट के अंदर माइनस दिया रहेगा। x plus 5 the whole square is 4i the whole square. X square plus 10x plus 25 is 16i square. So x square plus 10x plus 25 is 16 into -1. Since I square is -1, plus 25 plus 16 is 0. इक्वेशन 1 ऐसा आया, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41। भी करो डिविजन। चल, x रेज टू 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 64। चलो ये तुम्हारा x स्क्वायर है, इधर तुमको x रेज टू 4 चाहिए, टोटल 3 टर्म है, तो x स्क्वायर से चालू होएगा, तो ये आएगा प्लस x रेज टू 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 41x स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट हो गया, दिस विल बिकम माइनस एक्स क्यूब, ये आएगा माइनस 6x स्क्वायर। अब ये पूरा शिफ्ट होएगा माइनस एक्स प्लस 64। एक्स स्क्वायर वो एक एक करके लेगा तो भी चलेगा, वो याद रहना चाहिए ना, वो याद नहीं रहता है, वो पूरा एक साथ ले लेने का, इसलिए पूरा लाइन डाल देने का। ये सब छोटे छोटे एरर्स है जो होते हैं। अभी एक्स क्यूब चाहिए तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्या करेगा, माइनस एक्स, साइन के साथ चेक करो, माइनस एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 41x, दिस इज प्लस प्लस प्लस, ये होएगा प्लस 4x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 64। चलो अभी एक्स स्क्वायर से प्लस 4 मल्टीप्लाई करेगा तो यू गेट प्लस 4x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 164। तो ये हो जाएगा -100। दैट्स योर डिवीजन। कर दो फॉर्मेलिटी स्टेप्स। Anybody facing difficulty still in division? मतलब क्या क्या गड़बड़ हुआ? साइन, साइन ना, इसलिए साइन के साथ, सब्ट्रैक्शन के बाद साइन के साथ लिखने का। 5th पेज 37 चलता है, लेकिन बहुत लंबा होएगा यार प्रश्न। पेज 37 पे क्वेश्चन 5 करो। चलो 3 समय फिनिश इट ऑफ। 5th का फर्स्ट, पेज 37।
करना भाई। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, रुक जा, इफ x इज 1 प्लस 2i। अभी इसमें क्या नहीं समझ रहा है तुझे? पेज 37 बोल रहा हूं मैं। x इज 1 प्लस 2i, तो x माइनस 1 इज 2i, squaring on both sides, x minus 1 the whole square is 2i the whole square, x square minus 2x plus 1 is 4i square, x square minus 2x plus 1 is 4 into minus 1, x square minus 2x plus 5 is 0, इक्वेशन 1। दोनों चाहिए, वोकेशनल में ज़्यादा स्कोर होता है। मार्केटिंग, एमएस, ओएम दोनों में स्कोर होता है। 200 में से 197 198 आता है। फिफ्थ का फर्स्ट में +1 आया रिमाइंडर, +1 इज द आंसर। फॉर्मेलिटी फिनिश करो। चले कर कर फिनिश कर फिनिश कर। अरे आई का स्क्वायर -1 है, ये आया क्वाड्रेटिक, सेकंड में कर दो डिवाइड। आंसर आएगा तो भी, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। इतना याद रखने का, एक्स स्क्वायर का जो कोइफिशिएंट है वो जनरली 1 ही रहेगा। सेकंड का आंसर -2 आया, रिमाइंडर कर दो फॉर्मेलिटी स्टेप्स। एनी डाउट्स? मिला? फॉर्मेलिटी स्टेप्स लिख दो, फिनिश द थर्ड वन। चलो हुआ? एनीबडी डूइंग? फिनिश करो थर्ड सम।
हिमांशु, हिमांशु, तेरी स्कूल का है ना? तो तू नवा हराइजन, नवा हराइजन हुआ, फिफ्थ का थर्ड हुआ, पटेल सब हो गया, आया आंसर्स? कर, चल फिनिश कर फटाफट। 9 कैसे होएगा? 17 आएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17, 16 आएगा ना, -16 ये साइड आएगा। हुआ, आया -3। मैं भी बाहर निकाल के माफ करना बोल देगा। ए हुआ, -3 आया। चलो नाउ लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट। चले बड़बड़, सुनो नाउ, लिसन। So this was one part where value of expression was to be found and we are following a specific pattern. Clear? Now we go ahead with the next part. Come to your page number 31. उसमें question number 8. Page 31, question number 8. उसमें first sum. Now please listen now. अभी बड़बड़ नहीं. They are saying find the value of x and y which satisfy the following equations where xy belongs to real number. And they have given the first sum as x plus 2y plus 2x plus 3y, rather minus 3y into I is equal plus 4y is equal to 5. Now see what happens here is, ये जो तुमको दिया है ना जिसमें I भी इन्वॉल्व है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, क्योंकि दोनों बाजू इज इक्वल टू के दोनों बाजू टर्म्स है। अभी जरूरी नहीं है दोनों बाजू टर्म्स हो, इज इक्वल टू 0 भी दे सकते हो लोग। इन शॉर्ट दिस इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमको x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है, बरोबर है। व्हाट वी डू हियर इज, एक बाजू दैट इज लेफ्ट साइड वी कीप इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आई, राइट साइड वी कीप इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आई, एंड देन वी इक्वेट टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो अभी इधर तुमको डिसाइड ये करना है, राइट साइड पे खाली 5 है, मतलब i वाला टर्म, तो अपने को i वाला टर्म डालना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली लेफ्ट से शिफ्ट करो, तो किसको शिफ्ट करूं? एग्जैक्टली, तो ये प्लस 4i को मैं शिफ्ट करेगा। ओके, सो दिस विल बिकम x प्लस 2y एज इट इज, क्योंकि इसमें i नहीं है, प्लस 2x माइनस 3y इंटू i है। ये पूरा कैन आई से कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म है, a प्लस बी आई, फर्स्ट ब्रैकेट a सेकेंड ब्रैकेट b इंटू आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 माइनस 4i। तो कैन आई से इक्वल टू का दोनों बाजू a प्लस बी आई फॉर्म आ गया। हाँ, तो अभी वी विल से बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दोनों बाजू कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इधर रियल पार्ट क्या है? x प्लस 2y, और इधर रियल पार्ट 5। तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन आएगा x प्लस 2y इज इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन इमेजिनरी पार्ट का आएगा, i की जगह पे ही है, लेकिन यहां पे ब्रैकेट और इधर i का कोएफिशिएंट क्या है? नहीं, -4 साइन के साथ लो, नहीं तो फंस जाएगा। सो योर सेकेंड इक्वेशन यू विल गेट 2x माइनस 3y इज -4। इज दैट क्लियर? दैट इज i का कोएफिशिएंट। ये हो गया इक्वेशन 2। नाउ कैन यू सॉल्व दिस साइमल्टेनियसली एंड ब्रिंग x एंड y? हो गया, इतना ही है इसमें। मतलब दोनों बाजू तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म लाने का, रियल पार्ट इक्वेट करो, इक्वेशन मिलेगा या डायरेक्ट वैल्यू मिलेगा, और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करो, इक्वेशन मिलेगा या डायरेक्ट वैल्यू मिलेगा।
दो सॉल्व करो, आ जाएगा एक्स एंड वाई। बोल, नहीं समझा? करो ध्यान से, बोल क्या नहीं समझा? क्या? कौन सा इक्वेशन? अरे ये a प्लस बी आई फॉर्म है और ये भी a प्लस बी आई फॉर्म है, तो a और a इक्वेट कर रहा है, b और b इक्वेट कर रहा है। तो इधर a मतलब x प्लस टू वाई, इधर a मतलब 5, इधर b मतलब 2x माइनस थ्री वाई और इधर b मतलब -4। i तो i की जगह पे ही है। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना ही पड़ेगा ना। अभी इसको सॉल्व कर सकता है कि ये भी नहीं आता है? करो, चलो फिनिश करो। y का वैल्यू 2 आया, x इज 1 y इज 2, क्लियर है? करो सेकेंड सम सेम पैटर्न में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लो, दोनों बाजू कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म लेके आओ। Both sides you should get a plus bi form, then you can equate. ए मिठी भाई, ओ मिठी भाई, सॉल्व कर। 8 का सेकंड हुआ, फर्स्ट हुआ तो सेकंड करो। तेरा ही सबसे बॉम्बे में पहले एग्जाम होने वाला है। चलो सेकंड शुरू करें। x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आई प्लस y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आई इज इक्वल टू आई। चलो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले, तो x प्लस 1 इंटू 1 माइनस आई प्लस y माइनस 1 इंटू 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई इज इक्वल टू आई। तो न्यूमरेटर में ब्रैकेट्स ओपन करो और डिनोमिनेटर चेक करो, दिस इज इन द फॉर्म a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये x इंटू सेकेंड ब्रैकेट प्लस 1 इंटू सेकेंड ब्रैकेट प्लस y इंटू सेकेंड ब्रैकेट माइनस 1 इंटू सेकेंड ब्रैकेट अपॉन दिस इज 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई। फाइनली ब्रैकेट्स ओपन करो न्यूमरेटर में, x माइनस एक्स आई प्लस 1 माइनस आई प्लस वाई आई माइनस 1 माइनस आई द होल अपॉन दिस इज 1 माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू आई। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 डाला, तो यहाँ पे +1 और -1 कैंसल हो रहा है। तो यहाँ पे खाली x और y वाला टर्म साथ में लो, तो दिस इज x प्लस वाई, ये पूरा एक टर्म होएगा। फिर x और y वाला i वाला टर्म साथ में लो, मतलब -xi प्लस वाई आई। फिर -2i, ये -i, दिस इज -2i द होल अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू i। अभी ये 2 को शिफ्ट करो, तो कैन आई से दिस इज x प्लस वाई, इधर प्लस ही लिख रहा हूं,
ये होएगा माइनस एक्स आई प्लस वाई आई माइनस टू आई इज इक्वल टू टू आई, तो ये माइनस टू आई शिफ्ट कर दो, तो ये आएगा x प्लस वाई प्लस इधर आएगा माइनस एक्स प्लस वाई इंटू आई बार निकालो ब्रैकेट के इज इक्वल टू टू आई प्लस टू आई। सो फाइनली ये होएगा x प्लस वाई प्लस ऑफ माइनस एक्स प्लस वाई इंटू आई। अब ये खाली 4i होएगा, तो कैन आई राइट दिस एज 0 प्लस 4i विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। अभी करो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x plus y is 0 equation 1 minus x plus y is 4 equation 2। कर दो सॉल्व। क्लियर? एनी डाउट्स? समझ में आया? 14th करो 14th। What is the value of y? चलो y is 2, तो x plus 2 is 0, x is minus 2। 14 करो अभी, इंस्टेड ऑफ x and y it is a and b, प्रोसीजर सेम है। स्टार्ट विथ 14th, फाइंड ए एंड बी बोला है। चलो 14 में द क्वेश्चन इज i रेज टू 4 प्लस 3i इंटू ए प्लस i माइनस 1 इंटू बी प्लस 5i क्यूब इज इक्वल टू 0। नाउ सबसे पहले जो हायर पावर ऑफ i है उसको कन्वर्ट करो, तो व्हाट वी कैन सब्सटीट्यूट i रेज टू 4, तो ये 1 हो जाएगा प्लस 3i इंटू ए प्लस i माइनस 1 इंटू बी प्लस 5 इंटू आई क्यूब का वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो रीजन डालो i रेज टू 4 इज 1, आई क्यूब इज माइनस आई। रीजन डालो बराबर से। अभी ब्रैकेट्स ओपन करो, तो यू गेट a प्लस 3ai प्लस bi माइनस b माइनस 5i इज 0। करेक्ट? चलो अभी a और b विदाउट i वाला साथ में लो, तो दिस विल बी a माइनस b, a और माइनस b। अभी विथ i वाला साथ में लो, तो प्लस 3i प्लस बी आई, और ये माइनस 5i को शिफ्ट कर दो, तो 0 प्लस 5i। सो फाइनली यू गेट दिस एज a माइनस बी प्लस 3a प्लस बी, ब्रैकेट में कॉमन i आएगा पीछे, इज इक्वल टू 0 प्लस 5i। आया दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में? तो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a माइनस बी इज 0 इक्वेशन 1, 3a प्लस b इज 5 इक्वेशन 2। साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, यू गेट 4a is 5
ए का वैल्यू 5/4, तो सब्स्टिट्यूट करो a माइनस बी इज 0 विच इज a इक्वल टू b, तो b का वैल्यू भी 5/4 आया, दोनों वैल्यू 5/4। ये समझ में आया ये पैटर्न? करो 15th। स्टार्ट विथ 15th। जो भी पावर वाला आई है उसको पहले कन्वर्ट करो। नहीं, मैथ्स ही होएगा, मैं नहीं देगा मेरा लेक्चर। चलो ये वीक में कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म, नेक्स्ट वीक में टेस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, अभी से बोल रहा हूँ। चलो और 2 टॉपिक खत्म करके फिर मैथ्स 2 पे जाएंगे, क्योंकि एक बार मैथ्स 2 चालू होएगा तो 5 टॉपिक लाइन में करना पड़ेगा, एटलीस्ट मिनिमम 3 टॉपिक तो करना ही पड़ेगा लाइन में, सब कनेक्टेड है। चले सॉल्व कर, 2 घंटा काम करने का है फिर भी नहीं होता तेरे से, सब चर्बी निकालेगा, रुक। अच्छा 15 में फाइन क्या करना है? मतलब तुम x और y निकालेगा फिर ऐड करके आंसर करेगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने का बरोबर से। दिस इज x प्लस 2y प्लस 15i रेज टू 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 7x प्लस आई क्यूब इंटू वाई प्लस 4। चलो सबसे पहले पावर ऑफ आई को कन्वर्ट करो, आई रेज टू 6 को भी राइट आई स्क्वायर द होल क्यूब इंटू वाई, 7x प्लस आई क्यूब का वैल्यू आएगा माइनस आई इंटू वाई प्लस 4, तो x प्लस 2y प्लस 15 इंटू दिस इज -1 द होल क्यूब इंटू वाई, 7x माइनस आई इंटू वाई प्लस 4, रीजन में डालो आई स्क्वायर इज -1 एंड आई क्यूब इज माइनस आई, so finally this becomes x plus 2y माइनस 15y होएगा, ये इज इक्वल टू 7x माइनस वाई आई माइनस 4i। अभी सारे एक्स वाई वाले टर्म लेफ्ट साइड लो, बिना एक्स वाई वाले टर्म राइट साइड लो, तो इधर से 2y शिफ्ट होएगा, इधर से ये 2 शिफ्ट होएगा, तो x माइनस 7x माइनस 15y प्लस वाई आई माइनस 4i माइनस 2i, माइनस 6x माइनस 15y प्लस वाई आई इज माइनस 6i। तो चलो ये आ गया माइनस 6x माइनस 15y प्लस वाई आई इज इक्वल टू 0 माइनस 6i। आया दोनों बाजू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर
माइनस 6x माइनस 15y इज 0, इक्वेशन 1, एंड y का वैल्यू डायरेक्टली मिलेगा, दैट इज -6. तो सब्सटीट्यूट करो y इज इक्वल टू -6 इन इक्वेशन 1. -6x minus 15 into -6 is 0. -6x plus 90 is 0. 6x is 90, तो x का वैल्यू is 15. लेकिन हमको ये कैलकुलेशन में चाहिए x plus y. 15 plus of -6. 15 minus 6, and that is 9. Clear? Any doubts? ये समझ में आया? ये आया ना? कर रहा हूँ, शांति रख. x और y सब एक साइड पे लिया है, देखना. 7x को x के साथ लिया तो x माइनस 7x आया, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे ना. फिर -15y के साथ ये प्लस वाई आई लिया, और ये जो +2i है उसको राइट साइड पे शिफ्ट किया. छापा बरोबर. चलो डन हुआ ये सबका. चलो वो एक्सरसाइज में एक लास्ट 17 बाकी है, फिनिश करो. हाँ फिर खत्म. 17th वन, इट्स अ प्रूफ. चलो 17 में देखो क्या दिया है. √3/2 प्लस i/2 द होल क्यूब इज i. ये प्रूव करना है, करेक्ट. तो स्टार्ट विथ योर LHS. सो दिस इज √3/2 प्लस i/2 द होल क्यूब. नाउ कैन आई से डिनोमिनेटर सेम है, तो आई कैन ऐड माई न्यूमरेटर. तो √3 प्लस i द होल अपॉन 2 द होल क्यूब. अभी ऊपर भी क्यूब दो, नीचे भी क्यूब दो, तो √3 प्लस i द होल क्यूब अपॉन 2 क्यूब. ऊपर a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला डालो. तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर अपॉन 2 का क्यूब 8 हो जाएगा. (3√3) प्लस i क्यूब का वैल्यू माइनस i प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर इज 3 इंटू i प्लस 3√3 इंटू i स्क्वायर इज -1 अपॉन 8. रीजन डालो. i क्यूब इज -i स्क्वायर इज -1. क्लियर. तो ये आएगा 3√3 माइनस i प्लस 9i. दिस इज -3√3.
तो 3√3 माइनस 3√3 कैंसिल, 8i अपॉन 8 बचेगा, 8 कैंसिल, विच इज i एंड दैट इज योर RHS. हाँ, फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया आज का. नो तो बरोबर तो बोला आज का एक्सरसाइज का ये हो गया आज फर्स्ट एक्सरसाइज का. चलो वी आर डन विद द फर्स्ट एक्सरसाइज. उसमें आई थिंक 10, 11, 12, 13 होमवर्क था. किया है? ठीक है, मैं कल डिस्कस करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं कल डिस्कस करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कल मत करके आओ, फिर मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं मैं. नाउ पेज 37 पे, पेज 37, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में जाएगा. पेज 37 क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में जाएगा. हाँ अभी 4 ही तो समय, 5 समय तो है. कितना टाइम लगेगा? नहीं तो अभी करो. हाँ तो ये 5 सम और प्रीवियस लेक्चर का होमवर्क जो नहीं किया ना उसको बाहर फेंकूंगा, और कल मैं स्क्वायर रूट डिस्कस कर रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो दैट इज अ लेंथी प्रोसीजर. सो वी मीट टुमारो एंड वी डिस्कस टुमारो. इज दैट क्लियर? लेकिन होमवर्क नहीं करके आया मैं उठा के बाहर फेंकेगा. ऑब्वियसली आई विल नॉट पर्सनली कैरी यू, बट आई विल टेल यू प्लीज गो आउट.